गजा के बाशिंदों को मिस्र या उर्दन मुंतकिल करने की इसराइली ख्वाहिश कोई नई बात नहीं है, मगर अब इस ख्वाहिश में एक ताकतवर आवाज़ शामिल हो गई है और वो है अमेरिका की। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गजा के 20 लाख बाशिंदों को मिस्र या उर्दन मुंतकिल किया जाए और लड़ाई के बाद गजा को अमेरिका के हवाले किया जाए ताकि वो उसकी तामीर नौ कर सकें। Why would they want to return? The place has been hell and nobody can live there. You can't live there. We can build them through massive amounts of money supplied by other people, very rich nations, and they're willing to supply it. If we can build something for them in one of the countries, and it could be Jordan, it could be Egypt, it could be other countries, and you could build 4 or 5 or 6 areas. It doesn't have to be one area, but you take certain areas and you build really good quality housing, like a beautiful town, like someplace where they can live and not die, because Gaza is a guarantee that they're going to end up dying. The same thing's going to happen again. इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से इस मंसूबे का खैर मकदम किया गया है। But the actual idea of allowing first Gazans who want to leave, I mean, what's wrong with that? They can leave. They can then come back, they can relocate and come back, but you have to rebuild Gaza. If you want to rebuild Gaza, you can't have, this is the first good idea that I've heard. It's a remarkable idea. And I think it should be really pursued, examined, pursued, and done, because I think it will create a different future for everyone. मगर इस मंसूबे को दुनिया भर, खुसूसन अरब ममालिक की तरफ से सख्त मुज़ाहमत का सामना है। सऊदी अरब, मिस्र, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन और अरब लीग की जानिब से इस मंसूबे की सख्त मुखालफत की गई है। कहा गया है कि इस मंसूबे पर अमल दरामद खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बिगाड़ सकता है और अमन व अमान की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। We want peace and we've laid out a plan for peace. Ask any Israeli official what is their plan for peace. You'll get nothing, because they're only thinking of the first step. We're going to go destroy Gaza, inflame the West Bank, destroy Lebanon, and after that they have no plan. We have a plan. We have no partner for peace in Israel. There is a partner for peace in the Arab world. अक़वाम मुत्तहिदा, बरतानिया, हमास और कई यूरोपियन ममालिक की जानिब से भी इस मंसूबे की मुखालफत की गई है। इसके अलावा गजा में मौजूद लोग जो फ़िलहाल तबाही का शिकार हैं, वो भी इस मंसूबे के शदीद मुखालिफ हैं। Well, I know that there is a percent of maybe 2 to 3% of the Gazans in the Gaza Strip during this war had already left Gaza. It happened, in fact, because the pressure was so unbelievable. They did it during war, but this percentage is so low, because you are talking about 2 million, over 2 million Gazans who are still in their city, and between the rubbles and the bodies of their and the graves and dead bodies of their beloved ones. They still live here. They didn't leave Gaza, but because they believe in their city, they believe in their homeland, they were expecting that they will be forcefully transferred to Sina or to other places in around the strip, the Gaza Strip, but they refused, and they raised their voices saying that we can't leave Gaza, even if it is totally destroyed, even if there is not one stone over other stone in Gaza, we will stay because it is our homeland. And even if we were all killed and graved in this soil of Gaza, it is better than leaving it by choice. We can't do that by choice. मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर नज़र रखने वाले माहिरीन का ये मानना है कि ये दरअसल ग्रेटर इसराइल का एक मंसूबा है जिस पर इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अमल पैरा है और जिसका मकसद गज़ा के मामले को अरब दुनिया तक फैलाना है। और यही वजह है कि अरब दुनिया इस सूरत हाल को भांपते हुए इस मंसूबे की शदीद मुखालफत कर रही है।
अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, जो कि बहुत मुश्किल है बल्कि नामुमकिनात में से है कि जॉर्डन या इजिप्ट में पैलेस्टीनियंस को जो है वो डिपोर्ट कर दिया जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि जो इजराइल की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है वो सिर्फ गजा तक नहीं रुकेंगी, क्योंकि हमने देखा कि इजराइल अभी भी साउदर्न लेबनान के कुछ हिस्सों में बमबारी कर रहा है। हमने देखा कि इजराइल सीरिया का जो पूरा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इजराइल ने तबाह कर दिया है बशार अल असद के फॉल के बाद, और गोलान हाइट्स से भी मजीद आगे इजराइल आ गया है। तो जो अरब रीजन के अंदर एक इसके खिलाफ जो एक रेजिस्टेंस उभर के सामने आ रही है वो इसी वजह से है कि अगर इजराइल को इस वक्त फ्री हैंड दे दिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि इजराइल यहाँ तक नहीं रुकेगा और इन फ्यूचर वो उन एरियाज की तरफ भी टारगेट करेगा जो कि गल्फ स्टेट्स के अंदर आते हैं, जो कि बाकी अरब ममालिक के अंदर आते हैं। तो और इसके साथ साथ ये भी होगा कि जो अब्राहम अकॉर्ड या जो इजराइल की नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर है जो अरब वर्ल्ड में पॉपुलराइज हो रहा था, उसकी एक कंडीशन यही थी कि गजा को और वेस्ट बैंक को एक पैलेस्टीनियन रियासत के तौर पे सामने आना चाहिए और इजराइल 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ उसको कायल करना चाहिए। अगर इजराइल इस तरीके से रिपोर्ट कर देता है तो इसका मतलब ये है कि जो अरब की जो एक कंडीशन थी वो भी उसको भी ऑब्लाइज नहीं किया गया डोनाल्ड ट्रंप या यूएस की तरफ से, जिसकी वजह से अरब्स माइट फील थ्रेटन्ड एज वेल एज ह्यूमिलिएटेड, जिसकी वजह से जो उनका एक यूएस के साथ रिलेशन है या उनकी जो अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन है रीजन में वो बहुत हद तक मुतासिर होने का खतरा है। यही 2-3 वजूहात हैं जिसकी वजह से अरब स्टेट्स की तरफ से इस किस्म के प्रपोजल जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है उसको बहुत शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। सऊदी अरब की जानिब से वाज़ेह ऐलान किया गया है कि उनके लिए ऐसा कोई भी मंसूबा नाकाबिल कबूल है और इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली फ़लस्तीनी रियासत के बगैर नामुमकिन है। सऊदी अरेबिया ने 2 टोक अल्फाजों में कह दिया है कि वो इस किस्म की नॉर्मलाइजेशन नहीं कर सकते जब तक कि फ़लस्तीनी रियासत ना बने। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हमायत ट्रंप करने को तैयार होगा या नहीं। अब तक तो हमने कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं देखी, और जहाँ तक इज़राइल का ताल्लुक़ है, इज़राइल तो 1 स्टेट सोल्यूशन जिसको कहते हैं वो मुसल्लत करने की कोशिश करता रहा है, और जो 2 स्टेट सोल्यूशन है जिसको यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की मुख्तलिफ रेजोल्यूशंस ने एंडोर्स किया है, बल्कि उस पर इंटरनेशनल कंसेंसस भी है, वो तो बिल्कुल पीछे चला गया है। तो जब तक फ़लस्तीनी रियासत पे कोई एग्रीमेंट नहीं होगी इंटरनेशनल लेवल पे, तो मैं नहीं समझती कि इस तरह की कोई नॉर्मलाइजेशन नज़र आती है सऊदी अरेबिया और इज़राइल के दरमियान। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।